Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 4th of November 2020, Wednesday. Inspiration of the day is start where you are, use what you have, do what you can. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. PM to brainstorm with Global Fund houses tomorrow. Tomorrow, that is on 5th of November, Ministry of Finance and the National Investment Infrastructure Fund, that is NIIF, is going to organize the virtual Global Investor Roundtable conference collectively, and that conference or the virtual Global Investor Roundtable will be chaired by our Prime Minister Narendra Modi, and in that roundtable conference India will try to engage and deliberate with the top fund houses, business leaders, policymakers in order to accelerate or speed up the growth of international investment into the India. So the overall purpose of this particular roundtable conference is to increase the investment flows, more specifically foreign investment flow into India. Approximately 20 of the world's largest pension and sovereign wealth fund with approximately $6 million assets under management will participate into this roundtable. So it is a very huge opportunity for Narendra Modi to deliberate and showcase his negotiation skills so that post-COVID era could be turned into opportunity era. The participating global institutional investors basically represents a key reason with that India has a very good business tie, including US, Europe, Canada, Korea, Japan, Middle East, Australia, Singapore, and so on. Apart from these foreign fund houses, the decision maker of several Indian business companies, including Reliance Industry Chairman Mukesh Ambani, Tata Group Chairman Mr. Ratan N. Tata, Kotak Mahindra Bank Managing Director Uday Kotak, HDFC Chairman Deepak Parekh, and the representative from Sun Pharmaceutical as well as Infosys Chairman Nandan Nilekani will also participate into this roundtable conference. And we all know that economy is on recovery path. Manufacturing PMI raises to approximately 58.9% and it is the highest since the last 10 years. We have discussed into the yesterday news. Power consumption grows approximately 13.38% on year on basis. Generation of e-bill has also increased. Toll collection has also increased up to 116%. Even India has recorded highest ever FDI in the first 5 months of financial year 21, that is approximately $35.73 billion. And apart from this, the bank credit had also seen growth into the month of September with 5.8% growth rate or with 5.8% growth. Apart from that, we have already discussed there is increase in FPI, GST collection has increased, automobile sale has increased. So number of other indicators, macroeconomic indicators as well as the high frequency indicators are also indicating that India is on recovery path, and at this recovery stage this particular roundtable conference or the virtual roundtable could be proof मल्टीफोल्ड बेनिफिशियल टू कंट्री इंडिया, क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो कैश स्टाव हैं, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। और अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, अगर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल हो जाते हैं इन ऑर्डर टू कन्विंसिंग ऑल दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स और द डिसीजन मेकर ऑफ द सोवरेन वेल्थ हाउसेस, in that case it may give a very big hit to the country economy because of number of structural reforms has already been taken by the current government as well as the recovery path adopted by country India during post COVID era. तो कल ये कॉन्फ्रेंस होनी है
कॉन्फ्रेंस के बाद डिसाइड होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी सक्सेसफुल रही ये कॉन्फ्रेंस, जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. So this VGII 2020 will focus on discussion around the India's economic and investment outlook. First, structural reform. Second, and the government vision for the path to a $5 trillion economy. Third, so there will be three focus of this virtual roundtable conference. Let's hope for the best. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. प्राइवेट बैंक्स shed COVID woes, profit rises by 159%. Indian private banks seems to have weathered the severe economic shock inflicted by COVID-19 pandemic, at least for now. So the quarter 2 results of private banks in India is showing little bit optimism or positivity. So backed by a steady rise in the net interest income, that is NII, and contraction in provision, private bank posted approximately 159% growth, that is on year basis, in net profit at approximately 18,814 crore into the second quarter, that is ended into the month of September. और जैसा कि हम सभी रिसेंट टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, ऑल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक. क्रेडिट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, एनपीए बढ़ रहे थे, प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा था, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर रही थी. बट क्वार्टर 2 के जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं प्राइवेट बैंक से, उसको देख कर के लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स एटलीस्ट फॉर नाउ आर एबल टू शेड द कोविड वोज. कोविड वोज मीन्स संकट, वोज को हिंदी में संकट बोलते हैं. However, the asset quality held up during quarter 2. The real picture is masked by Supreme Court directive that accounts not declared non-performing assets as of August 31st should not be classified as such until further ऑर्डर्स. तो असेट क्वालिटी को लेकर के अभी भी एक्सपर्ट्स डाउट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन दिए थे कि अगस्त 31 तक ऐसे लोन जो कि कोविड-19 की वजह से अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्होंने कोविड-19 की वजह से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लेवी किया है बैंक उसको पे नहीं किया था, उसकी वजह से उनको फिलहाल के लिए अगस्त 31 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाए. तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से, जो कि अगस्त 31 को ख़त्म हुआ है, तो क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स है उसमें असेट्स क्वालिटी के बारे में अभी रियल पिक्चर को मास्क कर पाना मुश्किल है. हालांकि NII जो मंथ सितंबर में आया है, NII स्टैंड्स फॉर नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि सितंबर के मंथ में आई है, वो अप्रॉक्सीमेटली 15% तक इंक्रीज हुई है. While the provisions and the contingencies declined to 4.2%, that is approximately 18,414 crore according to the business standard analysis of 17 listed private lenders. All the lenders posted profit after tax in quarter 2 of financial year 21 except the two large lenders, that is Axis Bank and IDBI Bank. Both had reported losses in quarter 2 of 2019 and 20, dragging down the profit performance. Sequentially, PAT grew 33.2% over the first quarter of financial year 21. And this is the financial of private lenders or private banks for the month or the quarter ended September 2020. तो जो क्वार्टर 2 एंड हुआ है सितंबर 2020 में, उसका ये कुछ फाइनेंशियल है. डू नॉट नीड टू मार्क अप द नंबर, यू जस्ट गो थ्रू वंस. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. ट्रेड डेफिसिट वाइडन इन अक्टूबर, exports dip 5.4%. So finally, India is coming back on its own track. India's mercantile export fell to
5.4% into the month of October, while import declined at a faster pace of 11.5% than a year ago, data released on Tuesday showed. तो ट्रेड डेफिसिट तो इंडिया का वाइडन हुआ है अक्टूबर के मंथ में, जस्ट लाइक द प्रीवियस track record of Indian economy. But one of the very peculiar thing that is happening is the import decline, and import has declined at a faster pace in comparison to the export. एक्सपोर्ट फॉल किया है 5.4% से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जबकि इंपोर्ट फॉल किया है 11.5% से एट फॉर द सेम पीरियड. However, the trade deficit was 25% lower than the previous year. That was approximately $8.78 billion month on month basis. So trade deficit widened from $2.72 billion in the month of September, when export rose approximately 6%. The fall in import was moderate compared to the previous month, but it is still substantial. Student, many of you might have the question, मैम अच्छी बात है import गिर रहा है, हमारा जो balance of payment होगा वो improve होगा. स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ माइंड और बहुत समझने की बात है कि इंडिया में जो इंपोर्ट गिर रहा है, जो हमारा इंपोर्ट फॉल कर रहा है कंटिन्यूसली कोविड-19 के ड्यूरेशन में, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल चेंजेस और इंक्रीज इनटू द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन बिजनेस. नो, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर कि हमारा बिजनेस बहुत इम्प्रूव हो गया है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, इसलिए हमें अब इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. ये रीजंस नहीं है. इसके बेसिक रीज़न क्या है? डिमांड ही नहीं है. बेसिकली इंडिया इज़ द इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट गुड्स, और फिनिशिंग करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल किया जाता है. तो अगर इंडिया में इम्पोर्ट गिर रहा है, इसका मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी फॉल कर रही है, वेदर इट इज़ अ डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट. क्यों? क्योंकि इंडिया को अगर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब कि फिनिश्ड गुड्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिनिश्ड गुड्स की डिमांड है ही नहीं, इसीलिए हमें इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है. इसी वजह से इंपोर्ट भी गिर रहा है, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडीशन एज पर द प्रिवेलिंग सिनेरियो. हाँ, अगर ये इंपोर्ट इस वजह से गिरता कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, हम इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए जिसकी वजह से हम खुद अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इनटू द import bill or the import amount is good. But at the current scenario, this reduction into the import or the import bill or fall in the import is because of the economic recession condition or low demand in the economy, whether it is an Indian economy or global economy. So export other than oil and jewelry rose to 6.3% in the October. However, this paled in comparison with the 12% rise into the month of September. तो अगर हम बात करें ऑयल और ज्वेलरी को निकाल दें तो एक्सपोर्ट जो है वो रोज किया है, बढ़ा है 6.3% से into the month of September. Oil and jewelry, one of the prime import items of Indian economy. Although this 6.3% increase is very less in compared to the month of September. September के मंथ में यही एक्सपोर्ट 12% तक राइज किया था, 12% तक बढ़ा था, जो कि अक्टूबर के मंथ में केवल 6.3 ही रह गया है. अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस वर अबाउट 33% लोअर इन अक्टूबर इन कंपैरिजन टू द ईयर एगो, जिसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंपोर्ट बिल में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑयल के जो प्राइसेस है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है. तो ओवरऑल हमें वैल्यू कम दिख रही है उस इंपोर्ट की. अगर हम अमाउंट की बात करें तो प्रॉब्लली अमाउंट में बी लार्जर देन value of the oil imports. Meanwhile, the essential non-volatile imports, excluding oil, gold, and jewelry, the decline of 8.3% have been seen because of the persistent weak demand into the international market as well as the domestic market. हालांकि गोल्ड का इंपोर्ट, जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उनका इंपोर्ट, और इवन इन
इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं उनका भी इम्पोर्ट अक्टूबर के मंथ में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और इट मे वी कॉल इट बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन इन इंडियन इकोनॉमी। इस समय इंडियन इकोनॉमी में फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड का इम्पोर्ट, जेम्स ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्ट बढ़ा है अक्टूबर के मंथ में। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ Indian economy in terms of export and import, and we have seen that imports continue to fall faster than the export since last few months. This yellow line indicate the import and the ग्रे लाइन और द ब्लैक लाइन इंडिकेट्स अ एक्सपोर्ट। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट उतनी स्पीड से पिकअप नहीं कर रहा जितनी स्पीड से एक्सपोर्ट पिकअप कर रहा है, दैट इज क्वाइट जनरल इन केस ऑफ इंडिया, बट इंपोर्ट का फॉल करना इज नॉट गुड इंडिकेशन। जो डिफरेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो इंडिया में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिंस फ्यू डिकेड्स, बट in comparison to export, import इतना ज़्यादा fall कर रहा है, that is very peculiar to Indian economy. And this data indicates the non-volatile export, that is non-oil और non-jewelry export. तो ये export जो black bar है that indicates the export, जो grey bar है that indicates the import, और हम clearly देख रहे हैं non-oil और non-jewelry के cases में भी import fall कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8। 88% more households sought to work under Manregas in October. Demand for Manrega work in the month of October, though much less than the peak months of May and June, is still significantly higher than the corresponding period of 2019 and 20। अब ये मनरेगा की जो डिमांड बढ़ रही है कंटिन्यूसली मई और जून और इवन अक्टूबर तक, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो, कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था मार्च के महीने में, तो लेबर का रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था फ्रॉम ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और स्टेट। जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर बेसिकली लेबर माइग्रेट करके काम करने जाते हैं, अगर हम बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे रीजन जहाँ पे यूपी बिहार के जो बहुत सारे लेबर्स हैं काम करते हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के 15 दिन के बाद से एक लार्ज अमाउंट का रिवर्स लेबर माइग्रेशन शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, लेबर क्लास वर नॉट एबल टू सर्वाइव इनटू दोज मेट्रोपॉलिटन सिटी that was actually impacted by lockdown induced due to the COVID-19। तो रिवर्स माइग्रेशन जैसे हुआ, लोग अपने विलेज, अपने गांव, अपने स्टेट्स वापस आने लगे सारे लेबर्स। उससे क्या हुआ, मनरेगा पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मनरेगा हम सबको पता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो कि एक गारंटी करती है कि जितने भी लेबर होंगे गांव में, उनको 100 दिन लेबर का काम दिया जाएगा। अगर नहीं दे सकती गवर्नमेंट काम, तो उनको 100 दिन का भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। तो बेसिकली होता क्या था, गांव में जो लोग रहते थे वो 100 दिन में, जाहिर सी बात है 100 दिन में काम करके आप पूरे साल भर नहीं खा सकते, तो वो बड़े बड़े सिटीज़ में काम करने के लिए, मुंबई जैसे शहरों में काम करने के लिए जाते थे और वहाँ अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे। तो उससे क्या होता था, मनरेगा जो कि उनके गांव में, उनके विलेज, उनके स्टेट्स में चल रहा है, उस पर कम प्रेशर रहता था। क्यों? क्योंकि वर्क डिमांड नहीं होती थी, क्योंकि जो लेबर है वो माइग्रेट कर गया है इनटू बिगर सिटीज़। तो मनरेगा जो उनके स्टेट या उनके गांव में चल रही हो, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था कि उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के लेबर्स को काम देना है। जब मैक्सिमम टाइम फीमेल्स ही होती थी जो कि मनरेगा में काम करती हुई मिलती थी। लेकिन जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जब लेबर अपने वर्क प्लेस से माइग्रेट करके अपने होम सिटी, अपने नेटिव प्लेस में आ गया, इन दैट केस मनरेगा पर प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि अब लेबर अनएम्प्लॉयड हो गया था और उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। तो उसने मनरेगा के तहत रजिस्टर कराया, मनरेगा पर डिमांड बढ़ने लगी, मनरेगा पर प्रेशर आने लगा कि वो अब जो पहले बहुत कम लेबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या काम प्रोवाइड करते थे, उन्हें एक लार्ज सेक्शन ऑफ लेबर्स को काम देना है। और जब तक मनरेगा पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि जो लेबर रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू आए थे, वो अभी भी, या हम ये कह सकते हैं उनका लार्ज चंक अभी भी अपने वर्क प्लेस पर रिटर्न होकर के नहीं गया है।
नहीं गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर लेबर क्लास अपने वर्क प्लेस पर वापस नहीं जाता तो इट मे लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर इनटू द इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट जो बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज होगी। इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट विद देयर फुल कैपेसिटी, प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड मनरेगा पर भी प्रेशर पड़ेगा। और अगर हम एलोकेशन की बात करें तो जितना एलोकेशन गवर्नमेंट ने बजट में किया था उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है। इवन Q2 तक ही, Q2 के पहले ही मनरेगा का जो एलोकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा, उस पर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका खर्च हो चुका है। तो गवर्नमेंट को फिर मनरेगा पर एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, देन इट विल इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट वंस अगेन। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको रिवाइव करने में भी प्रॉब्लम होगी। दैट इज वाई दिस इंक्रीज इनटू द मनरेगा प्रेशर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। हालांकि एक्सपर्ट ये अज्यूम कर रहे थे कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन होगी, इकोनॉमी रिज्यूम करेगी, वैसे वैसे मनरेगा पर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि लेबर अपने वर्क प्लेस पर, अपने वर्क प्लेस सिटी पर वापस पहुंचेगा और काम रिज्यूम करेगा। तो जो मनरेगा पर उनके विलेज पर जो प्रेशर पड़ रहा है वर्क डिमांड का, वो प्रेशर रिड्यूस होगा। बट एज पर द करंट डेटा रिलीज, 88% more households sought to work under Manrega into the month of October, and that is not a very good indication for Indian economy. इसका मतलब ये है कि जो लेबर सेक्शन है वो अभी भी अपने वर्क प्लेस को वापस नहीं जाना चाहता, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द skepticals. In total, the data sourced from Manrega website shows that around 24.3 million households demanded work under the scheme into the month of October 2020, and this is approximately 88.3% more than the same period of the last year. And clearly, despite the seasonal drop in the work demand under the scheme due to the showing of the Kharif crop, Manrega works continue to be in high demand, especially in rural India. And this is the graph representing the households that demanded work during April to March. और जैसा कि हम देख रहे हैं, initially ये fall किया, then start increasing. This blue line indicates for financial year 19. This red line indicates for financial year 20, and this black line indicates the financial year 21. And this is the graph representing the comparison between the household which actually got employment and the household which did not get employment. तो ये millions में डेटा है अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2020 तक in terms of percentage. So blue bar जो है that indicates the household which actually got employment, and this orange bar indicates the household which did not get work they demanded under Manrega. And if we can see it easily that this orange bar on the orange portion is increasing month by month. It means Manrega पर pressure बढ़ रहा है. Manrega is not able to fulfill the demand of employment because of the number of resource constraints. So now it is a time for the government to take certain initiative, either increase allocation or to provide the alternative job opportunity to the reverse migrated laborers. अब देख लेते हैं some other news clips. Abu Dhabi sovereign fund first to get 100% tax assumption in infrastructure. So in line with the budget announcement, the government has allowed income tax exemption to Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund, that is SWF MIC Redwood, for making long-term investment in India in a specific priority sector of इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इस पर्टिकुलर बजट सेशन में इंडिया ने अनाउंस किया था कि अबू धाबी या ऐसे बहुत सारे फॉरेन फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, जो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहें स्पेशली इन प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल गेट 100% टैक्स assumption. And for that, Abu Dhabi Sovereign Fund has become the first fund to get the 100% tax assumption in Indian infrastructure projects.
So it is the first sovereign SWF to get 100% tax assumption in case of income from interest, dividend and long-term capital gains for its investment, especially in case of infrastructure प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर 100% टैक्स अजम्पशन मिलेगा तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर। तो ऐसा सेक्टर जहाँ पर, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। तो ऐसे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो कैश स्टाव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पड़ा है उसको दोबारा से लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अबू धाबी जैसे बहुत सारे अदर फॉरेन फंड्स को, सॉवरेन फंड को अट्रैक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर इंसेंटिव स्कीम डाले जिसमें उनको 100% टैक्स अजम्पशन मिलेगा अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड व्हाट आर दोस प्रायोरिटी सेक्टर? ट्रांसपोर्ट, रोड, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल, ट्रैक एक्सेट्रा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, स्टोरेज। सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रा के केस में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, कोल्ड चेन्स, कन्वेंशन सेंटर्स, होटल्स, एग्री बिजनेस, एग्री मार्केट। वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस। कम्युनिकेशन के केस में टेलीकम्युनिकेशन टावर्स। तो इन सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स या हम बोल सकते हैं की सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने 100% टैक्स अजम्पशन प्रोवाइड किया है टू अबू धाबी सॉवरेन फंड। Even government wants to attract the more such funds so that in India infrastructure can be boosted up. तो अप्रॉक्सीमेटली 34 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ने 100% टैक्स अजम्पशन की इंसेंटिव स्कीम लाई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नाउ अदानी टू ओन अ कोल माइन इन India. For the first time, port to power conglomerate Adani Enterprises will now own a coal mine in India. एंड अंडर आत्मनिर्भर भारत हम सबको पता है कोल का कॉमर्शलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका था। पहले क्या था, इंडिया में कोल, वही कंपनी जो कोल की माइनिंग करती थी वो सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोल को यूज़ करती थी, केवल उसी के लिए माइनिंग कर सकती थी। कॉमर्शियल कंजप्शन या कॉमर्शियल माइनिंग आत्मनिर्भर भारत के बाद बूस्ट करी है। एंड अदानी फॉर द फर्स्ट टाइम विल होल्ड अ कोल माइन इन इंडिया। द कंपनी is the largest mine developer and operator or end-to-end mining contractor in India, which contract for 11 mines and 1 coal washery. तो बेसिकली लीज पर दी थी गवर्नमेंट इन कोल माइंस को प्राइवेट कंपनीज को, सो दैट दे कैन डू माइनिंग एंड दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोल फॉर देयर ओन पर्पस। बट नाउ अदानी इज गोइंग टू ओन अ कोल माइन इन इंडिया। Stratatech Mineral Resources, a subsidiary of Adani Group, placed the highest closing bid for the Dirauli mine in Madhya Pradesh. And it is more probably and more likely that it will edge out the only bidder, that is Hindalco Industries, that actually quoted 12.5% premium on revenue sharing basis. So more likely and probably Dirauli mine will get to the Adani Group. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। PNB to raise rupees 7K via QIP this year. So Punjab National Bank will raise approximately 7,000 crore through a share sale of institutional investment by the month of December, even as the state-owned lender has not received as many requests for COVID-19 related loan restructuring as it is expecting. तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए 7,000 करोड़ के क्यूआईपी स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के लिए पंजाब नेशनल बैंक को अप्रूवल दे दिया है। अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो जो भी रिसेंटली कोविड-19 इम्पैक्टेड जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस हो रही थी उसमें पीएनबी के पास इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के जितनी पीएनबी ने एक्सपेक्ट करी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से द quite good financial PNB has, and that is why PNB is planning for QIP into the month of December.
and the bank has shed high cost deposit worth rupees 27,000 crore from its book, helping improve its net interest margin. And because of all these financial, PNB is expecting 4 to 6% credit growth in the second half, taking annual growth to 3 to 4% into the financial year 21. अगर एनपीए लेवल की बात करें तो करंटली जो पीएनबी का एनपीए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 13.43%, और बैंक की जो एक्सपेक्टेशन है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पीएनबी का जो एनुअल ग्रॉस एनपीए है वो मोस्ट लाइकली 14% के नीचे ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं पीएनबी इज क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स इज financial performance for financial year 21. That's all for today, student. News of the day is trade deficit widened in October, exports dipped 5.4%. Vocabulary of the day is woes. Woes means sankat. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you, students.